آداب، یہ اعتماد کی خبریں سب سے پہلے پیش سرخیاں۔ مودی حکومت کی تیسری میعاد کا بجٹ پیش، کئی اعلانات، سونا اور اسمارٹ فونز ہوئے سستے۔ یہ ملک کی ترقی کا نہیں بلکہ مودی حکومت بچاؤ بجٹ ہے، صدر کانگریس ملکارجن کھڑگے کی شدید تنقید۔ نیٹ UGC امتحان پر سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ، امتحان کی منسوخی یا دوبارہ انعقاد سے انکار۔ 25 جولائی کو تلنگانہ کا بجٹ پیش، بجٹ اجلاس 31 تاریخ تک رہے گا جاری۔ اور حیدرآباد کے مضافات میں خاتون کی کھوپڑی کی دستیابی سے سنسنی، 6 ماہ قبل قتل کا شبہ۔ اسرائیلی حملوں کے دوران جنوبی غزہ پٹی کے خان یونس شہر میں کم از کم 70 فلسطینی ہلاک اور 200 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ غزہ میں مقیم صحت عہدیداروں نے یہ اطلاع دی ہے۔ محکمہ صحت کے عہدیداروں نے بتایا کہ شہر کے ناصر میڈیکل کمپلیکس نے مقامی لوگوں سے اپیل کی ہے کہ خون کے یونٹس کی سنگین اور بڑی کمی کے پیش نظر کمپلیکس کے اندر زخمیوں اور بیماروں کے مفاد میں فوری طور پر خون کا عطیہ دیں۔ فوری طور پر انخلاء کا حکم جاری ہونے کے بعد اسرائیلی جنگی طیاروں نے خان یونس کے مشرقی علاقوں پر شدید بمباری شروع کر دی۔ فلسطینی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے اطلاع دی ہے کہ مشرقی علاقوں میں شہر کے مغرب کی طرف بڑے پیمانے پر نقل مکانی دیکھنے میں آئی، خاص طور پر المواسی علاقے میں۔ اسرائیلی پارلیمنٹ نے اقوام متحدہ کی ذیلی تنظیم یونائیٹڈ نیشنز ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کے لیے بل منظور کر لیا۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد بل امور خارجہ اور ڈیفنس کمیٹی کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ فلسطین، لبنان، اردن اور شام کے علاقوں میں فلسطینیوں کی تعلیم اور صحت سے متعلق کام کرنے والے ادارے اور اسرائیلی حکومت کے درمیان تعلقات ہمیشہ تناؤ کا شکار رہے ہیں۔ تاہم 7 اکتوبر کے بعد اسرائیل کی غزہ میں جنگ کے بعد تعلقات کی تلخی میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ سپریم کورٹ نے منگل کے روز قومی اہلیت و داخلہ ٹیسٹ نیٹ UG کو منسوخ کرنے یا دوبارہ امتحان منعقد کروانے کا حکم دینے سے انکار کر دیا۔ عدالت نے کہا کہ پیپر لیک کے 2 مقامی معاملوں کے باوجود یہ نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا کہ منظم سطح پر امتحانی ضابطے کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ چیف جسٹس DY چندرچوڑ کی سربراہی والی بنچ نے یہ تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ جھارکھنڈ کے ہزاری باغ اور بہار کے پٹنہ میں میڈیکل داخلہ ٹیسٹ کا پرچہ لیک ہوا تھا۔ اپنے فیصلے میں کہا کہ 23,23,000 امیدواروں کو دوبارہ امتحان میں شامل کرنا غیر منصفانہ ہوگا۔ اس فیصلے سے نیٹ 2024 میں کامیاب ہونے والے 1 لاکھ سے زیادہ متوقع ڈاکٹرز کی خدمت کے بارے میں سسپنس کا دور ختم ہو گیا۔ مرکزی وزیر فائنانس نرملا سیتارامن نے آج پارلیمنٹ میں بجٹ پیش کر دیا۔ اس موقع پر بجٹ تقریر میں انہوں نے کہا کہ آندھرا پردیش تنظیم جدید ایکٹ کے مطابق صنعتی ترقی کے لیے خصوصی مدد فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اسی کے ایک حصے کے طور پر حیدرآباد بنگلور انڈسٹریل کوریڈور کو ترقی کے لیے خصوصی فنڈ مختص کیا جائے گا۔ اس طرح وشاکھاپٹنم چنئی انڈسٹریل کوریڈور کو خصوصی مدد فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اورواکلو اور کوپرتھی کے صنعتی علاقوں کو پانی، برقی، شاہراہوں کی ترقی کے لیے فنڈز مختص کیے جا رہے ہیں، تاہم وزیر نے رقم کی وضاحت نہیں کی۔ وزیر فائنانس نے بجٹ میں آندھرا پردیش کو بھاری مالی امداد کا اعلان کیا۔ آندھرا پردیش کے دارالحکومت امراوتی کی ترقی کے لیے 15,000 کروڑ روپے کے خصوصی امدادی فراہمی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ضرورت کے مطابق مستقبل میں امراوتی کو مزید اضافی فنڈز مختص کیے جائیں گے۔ نرملا سیتارامن نے یہ بھی کہا کہ آندھرا پردیش کی تنظیم جدید ایکٹ کے مطابق پولاورم پروجیکٹ کی جلد تعمیر کے لیے پوری مدد کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ پولاورم کو مطلوبہ فنڈ فراہم کریں گے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پولاورم آندھرا پردیش اور کسانوں کے لیے لائف لائن کی طرح ہے، یہ ہندوستان کے غذائی تحفظ کے لیے بہت اہم ہے۔ Andhra Pradesh Reorganization Act. Our government has made concerted efforts to fulfill the commitments in Andhra Pradesh Reorganization Act. Recognizing the state's need for the capital, recognizing the state's need for a capital
We will facilitate special financial support through multilateral development agencies. In the current financial year, 15,000 crore rupees will be arranged with additional amounts in future years. Our government is fully committed to financing and early completion of the Polavaram irrigation project, which is the lifeline for Andhra Pradesh and its farmers. This will facilitate our country's food security as well. मोदी हुकूमत ने अपनी तीसरी मियाद का पहला बजट पेश कर दिया। वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने इस बजट में कई बड़े ऐलानात किए हैं, जिसमें मोबाइल फोन के हवाले से भी बड़ा ऐलान शामिल है। पिछले कुछ साल में हिंदुस्तान में मोबाइल फोन की तैयारी में तेजी से इजाफा हुआ है। मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग को फरोग देने के लिए हुकूमत ने कस्टम ड्यूटी में कमी का ऐलान किया है, जिससे इंडस्ट्री पर मुस्बित असर पड़ेगा और फोन की कीमत में भी कमी हो सकती है। बजट 2024 में हुकूमत ने मोबाइल और एसेसरीज पर बुनियादी कस्टम ड्यूटी को कम करके 15% कर दिया है। वज़ीर फाइनेंस ने अपनी बजट तकरीर में कहा कि हिंदुस्तान मोबाइल इंडस्ट्री अब बेहतर हो चुकी है। इसके साथ उन्होंने बुनियादी कस्टम ड्यूटी कम करने का ऐलान किया, जिसकी वजह से मोबाइल फोन और एसेसरीज सस्ते होने से ज्यादा लोग इनका इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे सारिफिन नई टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर सकेंगे। इस ऐलान की वजह से मुकामी पैदावार में इजाफा होगा। इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान में फोन की तैयारी में इजाफा होगा। सारिफिन को ज्यादा से ज्यादा ब्रांड्स देखने को मिलेंगे, जिससे मार्केट में मसावकत बढ़ेगी और बराह रास्त फायदा सारिफिन को होगा। Mobile phone and related parts, with a 3-fold increase in domestic production and almost a 100-fold jump in exports of mobile phones over the last 6 years, the Indian mobile industry has matured. In the interest of consumers, I now propose to reduce the BCD on mobile phone, mobile PCBA and mobile charger to 15%. मरकजी हुकूमत ने सोना और चांदी और दीगर धातुओं पर आयद किए जाने वाले कस्टम्स ड्यूटी में कमी कर दी है। पार्लियामेंट में बजट पेश करते हुए वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी को 6% करने का ऐलान किया। वज़ीर फाइनेंस ने मजीद बताया कि प्लाटिनम पर कस्टम ड्यूटी 6.4% कर दी गई है। उन्होंने कहा कि मुल्क में सोने और कीमती धातु के जेवरात में घरेलू वैल्यू एडिशन को बढ़ाने के लिए सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी को 6% और प्लाटिनम पर 6.4% करने की तजवीज़ पेश की गई है। तज्जियाकारों के मुताबिक इस इक़दाम से सोने और चांदी की कीमतों में कमी और मुल्क में कीमती धातुओं की मांग में इजाफा होने का इम्कान है। सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी को कम करके 6% कर दिया गया है, जिससे घरेलू कीमतें भी कम हो सकती हैं और शायद मांग में इजाफा हो सकता है। सोने और चांदी पर मौजूदा ड्यूटी 15% है, जिसमें बुनियादी कस्टम ड्यूटी का 10% और ज़र इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस के तौर पर 5% शामिल है। Precious metals. To enhance domestic value addition in gold and precious metal jewelry in the country, I propose to reduce customs duties on gold and silver to 6% and that of platinum to 6.4%. Other metals, steel and copper, are important raw materials. To reduce their cost of production, I propose to remove the BCD on ferronickel and blister copper. I am also continuing with nil BCD on ferrous scrap and nickel cathode and concessional BCD of 2.5% on copper scrap. सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगल के रोज पेश करदा आम बजट को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने मुल्क की तरक्की वाला नहीं बल्कि मोदी हुकूमत बचाओ बजट पेश किया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि ये नकलची बजट है, जिसमें हुकूमत कांग्रेस के न्याय वाले एजेंडे की ठीक तरह से नकल भी नहीं कर पाई।
खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए अपने एक पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस के न्याय के एजेंडे को ठीक तरह से कॉपी भी नहीं कर पाया मोदी हुकूमत का नकलची बजट। मोदी हुकूमत का बजट अपने इत्तेहाद के साथियों को ठगने के लिए आधी अधूरी रेवड़ियां तकसीम कर रहा है ताकि एनडीए को नुकसान ना हो। सदर कांग्रेस ने मजीद कहा कि ये मुल्क की तरक्की का बजट नहीं बल्कि मोदी हुकूमत बचाओ बजट है। ये बजट देखने के बाद ऐसा लगा कि उन्होंने दो मित्रों को खुश करने को छोड़ के दूसरे किसी को भी 140 करोड़ जनता को उन्होंने अलग रखा और दो मित्रों को उन्होंने साथ लेकर कुर्सी बचाने का काम किया है। तो कुल मिलाकर ये बजट किसके लिए है अब बाद में मालूम होगा, क्योंकि एक तो हमने बोला कि दो लोगों के खुशी के लिए ज्यादा है और वो उनकी हमेशा क्या है, प्रॉमिसेस तो बहुत है उनके लेकिन काम कुछ नहीं होता। एक आप ऐसा एक तो इनके 10 साल के बजट में हमको बताइए कि जैसा मनरेगा जैसा प्रोग्राम हमने किया, फूड सिक्योरिटी का हमने प्रोग्राम किया, हेल्थ मिशन का काम हमने किया और राइट टू एजुकेशन का काम हमने किया। ये 10 साल में सारे जनता के लिए, बच्चों के लिए मिड डे मील स्कीम, ऐसी सारी चीजें हमने 10 साल में करके सारे जनता को समान दृष्टि से हमने किया। आप ऐसा बताओ, आप किसको लास्ट टाइम इन्होंने करोड़ों मकान बनाने का आश्वासन दिया, आवास बना, उसमें अभी भी 50% भी नहीं हुआ और आगे अब बनाने का आश्वासन तो दिए हैं, तो जब छत मिलेगा तभी लोग याद करेंगे उनको। अब फिलहाल तो वो शायद मैं तो समझूंगा कि वो जो भाषण करते हैं और मोदी जी पहले की गारंटी तो कुछ नहीं दिए, तो अब इसमें अपनी गारंटी की बात नहीं की है उन्होंने इलेक्शन में। तेलंगाना असेंबली का बजट इजलास एक हफ्ते तक जारी रहने वाला है। असेंबली की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने बजट इजलास को इस माह की 31 तारीख तक मुनक्किद करने का फैसला किया। स्पीकर असेंबली के चैम्बर में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, रियासती वज़रा बीआरएस की तरफ से हरीश राव, मजलिस की जानिब से जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, बीजेपी की तरफ से महेश्वर रेड्डी ने शिरकत की। हुकूमत ने आज के दिन को मिलाकर कुल 8 दिन तक इजलास मुनक्किद करने से इत्तेफाक किया। इतवार को छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। किसानों के कर्ज माफी पर कल असेंबली में बहस होगी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर एम भट्टी विक्रमार्का 25 जुलाई को असेंबली में बजट पेश करेंगे। कानून साज असेंबली में 31 तारीख को बजट मंजूर कर दिया जाएगा। हुकूमत असेंबली इजलास के दौरान स्किल यूनिवर्सिटी बिल पेश करने वाली है। रियासती वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि नए राशन कार्ड्स की इजराई के लिए एक काबीनी सब कमेटी तश्कील दी जाएगी। रियासती असेंबली में बजट इजलास के आगाज के मौके पर इहाते असेंबली में मीडिया के नुमाइंदों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि असेंबली के जारी सेशन में ही काबीनी सब कमेटी तश्कील दी जाएगी।
और ये कमेटी नए राशन कार्ड्स की इजराई का जायजा लेगी। उन्होंने कहा कि फिलवक्त रियासत में 90 लाख सफ़ेद राशन कार्ड हैं। इसके अलावा भी नए राशन कार्ड्स का मुतालबा है। उन्होंने कहा कि आरोग्यश्री स्कीम में शामिल होने के लिए बाज़ अफराद राशन कार्ड हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे अफराद को राशन कार्ड के बगैर आरोग्यश्री कार्ड जारी करने का मंसूबा है। रियासती वजीर ने मजीद कहा कि राशन लेने वालों के लिए राशन कार्ड जारी करने का मंसूबा है। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके मिर्चल पुलिस स्टेशन के हुदूद में नामालूम खातून की खोपड़ी सुनसान मुकाम पर झाड़ियों से दस्तयाब हुई। मिर्चल बल्दिया के तहत आने वाले नारने स्टेट में ड्यूटी पर मामूर सिक्योरिटी मुलाजिमिन ने खोपड़ी, बाल, साड़ी, हैंडबैग और एक सैंडल देखकर फौरी तौर पर मुकामी पुलिस को इतला दी। इतला मिलने के बाद पुलिस ने जाय हादसे का मुआयना किया और शहर के गांधी हॉस्पिटल से फॉरेंसिक प्रोफेसर केवी नागराजू के अलावा 5 अरकान पर मुश्तमिल टीम के साथ शवाहिद इकट्ठे किए। फॉरेंसिक प्रोफेसर केवी नागराजू ने शुबा जाहिर किया कि कत्ल की वारदात शायद 6 माह पहले पेश आई होगी। इस सिलसिले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। मोदी हुकूमत की तीसरी मियाद का बजट पेश, कई ऐलानात, सोना और स्मार्टफोन्स हुए सस्ते। ये मुल्क की तरक्की का नहीं बल्कि मोदी हुकूमत बचाओ बजट है। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे की शदीद तनकीद। नेट यूजीसी इम्तिहान पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, इम्तिहान की मनसूखी या दोबारा इनेकाद से इनकार। 25 जुलाई को तेलंगाना का बजट पेश, बजट इजलास 31 तारीख तक रहेगा जारी। और हैदराबाद के मज़ाफ़ात में खातून की खोपड़ी की दस्तयाबी से सनसनी, 6 माह कबल कत्ल का शुबा। ये थी एतमाद की खबरें। इसी के साथ ये खबरनामा यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत।